مجھ سے سارا ہوگا کسی اس کے دامن میں چھپ دامن تمہارا چھوڑ مر کے جیتے جو گل پہ جاتے ہیں سمجھی کے مرتے گئے جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر تو بس
مولا ہے کل مولا علی مولا ہے کل مولا علی مولا ہے کل مولا علی مولا ہے کل تیرے پیروں आप चल हेलो अरे हेलो ओला बाला गाम से ओला नीलेश भाई कुंभाणी रिया पैसा देवा आवशे हाँ सिल्वर आई सिल्वर आई सिल्वर ना देवा आवशे साहेब ने पूछो मैडम ने कि सिल्वर क्यारे आवशे सिल्वर ना पैसा देवा आवशे हाँ लाख हाँ एक पूरा दी जाए 1 लाख दी जाए मैंने बाकी ओली रिसिप्ट बनाई दे रेवेन्यू स्टेम्प मारे हेलो हमણાં આવે છે आस्ताना सलामत रहे मुस्तफा का गलाना सलामत रहे ताजरे आस्ताना सलामत रहे आस्ताना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे पल है जहाँ से दो सलामत रहे कादर आस्ताना सलामत रहे हुक्म का
کرتا پیدا ہو نماز پچا حکم کا پیدا نماز پچا آپ کا آنا جانا سلامت رہے قادر آستانہ سلامت رہے لکیرین بولے مجھے قبر میں لکیرین بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے قدر آستانہ. میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشریفات اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ کا شکر اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اللہ کے مقبول بندے اور تمام ولیوں کے سردار غوث العظم کا جلوس نکالا ہے. اور سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلوس اور سبحان اللہ کہ آج سے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جب مسجد نہیں بنی تو آپ سبھی حضرات جوناگڑھ جاتے تھے جلوس میں، اور الحمدللہ جب سے مسجد بنی ہے تب سے الحمدللہ ہم سبھی جلوس نکالتے ہیں. اور یہ جلوس نکالنا سبحان اللہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اور بزرگوں کی تعظیم کرنا اور ان کے لیے یہ احترام اور عزت کے ساتھ چلنا، یہ الحمدللہ تمام اللہ والوں کی سنت بھی ہے. اور اس میں الحمدللہ ادب اور احترام جتنا رکھو آپ اتنا ہی بغدادی دولہا کا کرم بنتا ہے. تو آپ خود سبحان اللہ نوٹ کرنا کہ یہ جتنی بہاریں ہیں اور جتنا سب کچھ ہے یہ سب کچھ انہی کا صدقہ ہے. ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کچھ چیز نہیں ہے نا کہ سبحان اللہ. اور آپ خود نوٹ کرنا کہ مسجد بننے کے بعد اپنے گاؤں میں کتنا بھلا ہوا ہے. تصور کرنا کہ اللہ کا گھر بنا، اس کے بعد الحمدللہ بلائیں دور ہو گئی ہے نا، بلائیں دور ہو گئی. اللہ کا گھر بنا، اس کے بعد ہماری کیا رونق ہوئی. یہ نوٹ کرنا کہ اللہ کے گھر سے ہمیں کیا ملا ہے نا. ہمارا اللہ کا گھر ہے، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے تو الحمدللہ، اور سرکار کے بال مبارک بھی ہے، غوث اعظم کے بھی بال مبارک بھی ہے، اور سبحان اللہ اس سے ہمارے گاؤں میں کیا ملا. تو آپ خود تصور کرنا، کبھی اکیلے میں غور و فکر کرنا کہ الحمدللہ ہم میں تو کچھ نہیں تھا، یہ اللہ کا گھر ملا اور یہ سرکار کے بال مبارک ملے، غوث اعظم کے بال مبارک ملے. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں خوشحالی عطا فرمائی ہے نا جو ہے. اور جو ہے ہمیں آج جو ہے کیونکہ تقریریں تو آپ بہت سنتے ہیں، شان بھی بہت سنتے ہیں، آج انشاءاللہ نصیحت سن لے آپ. اور انشاءاللہ اگر اس پر ہماری مائیں بہنیں اور سارے لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں دکھی نہیں رہیں گے ہے نا. اب ایک نصیحت کہ وہ ہے عفو درگزر کرنا، معاف کر دینا ہے نا. اب جو ہے میں آج بات بتاؤں گا، وہ بات اتنی ہے کہ اسے ہمیشہ دماغ میں آپ رکھنا کہ آج نصیحت ہے یہ کہ آج ہمارا چھوٹا سا معاملہ ہو جاتا ہے تو میں نے کل تقریر میں کہا تھا کہ ہم منہ چڑھا لیتے ہیں. جیسے کیوں اس نے بنڈل اس میں رکھ لیے 10,000 20,000 یا اس نے زمین مار لی، بات ذرا سی ہوتی ہے ذرا سی ہوتی ہے. وہی گال نو رکھے ہی میں رکھوں مجلس پروگرام ہی رکھنا ہو، میں علاقے میں کون رکھے بھائی، جتنے بھی علاقے میں رکھنا ہوئے پروگرام تو غوث اعظم جو ہے بھائی پہ جو دوڑو ہے نا، میرا بھی نہیں ہے نا، غوث پاک کا ہے. تو اسے ایسا نہیں کرنا کہ میں کرتا ہوں، نہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا جلسہ بناتے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات، یہ تو بڑے پیر ہے نا، ہماری کوئی اوقات ہے
हमारी क्या औकात कि हम जो है पीरानी पीर दस्तगीर का ये सब कुछ बना सके। अरे ये हमसे काम लेते हैं, काम क्यों लेते हैं मालूम है? ताकि उसका बदला हमें अता फरमाए, है ना। वो काम इस वजह से लेते हैं। तो एक बात याद रख, आफू दरगुजर, हमेशा उसको अपने अंदर पना देना कि आज हम किसी को माफ नहीं करते। ये करेला माफ करा बाबू आशा है जो वांधो है केकरो खबर अरे भाई करो वांधो है कि तो मिलकत खाई है, पैसा खाई है, तो जमीन लूटी गए या करो दवाई गए पैसा वैसा, बात जरा सी हो क्या हो मोई को न रखे भाई तो के वडो करेला अल्हम्दुलिल्लाह असू तो चाहे था कि हर एक वडो थी उन्हें। और असाई तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक के घर में खुशहाली अता फरमाए ना। हमारी तो यही दुआ कि हर एक बड़ा हो जाए, लेकिन याद रखो कि बड़ा आदमी काम से होता है। किससे होता है ना? बड़ा कब होता है? आपको बड़ा सेठ बनना है तो किसी से पूछो, बेचारा रात दिन तोड़ाते तब जाकर हो बड़ा बनते हैं कि नहीं, पसीना बहाते हैं, रात दिन काम करते तब जाकर हो सदर पार्टी बनते हैं ना। अगर किसी का काम नहीं करना है, सिर्फ बड़ा ही बनना है ना, किसी के काम नहीं करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे। कि आज देखिए कि ये जो डेकोरेशन करते हैं, ये जो जुलूस की शक्ल में ये नाव बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बच्चे ही मेहनत करते हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें उससे ज्यादा तरक्की अता फरमाए ना, है ना। और अल्लाह ताला इनको ये हौसला अता फरमाए ना, है ना। क्योंकि काम आदमी का नाम कब होता है? जब वो काम करता है, तब जाकर उसका नाम होता है। अगर आप काम ना करो तो आपका नाम नहीं हो सकता है। काम जब आप करते रहोगे, क्यों, और इसमें भी दिल के खुलूस के साथ जब काम करते रहोगे तो अल्लाह ताला उसका बदला अता फरमाएगा ना। अब बात जरा सी में हम एक दूसरे से सलाम कलाम से भी जाते हैं, है ना। माहौल ऐसा हो गया है, और खुद आप सभी हजरात भी जानते हैं, कोई किसी को कह नहीं सकता है, कोई किसी को बोल भी नहीं सकता है ना। और ये नाइत्तफाकी खुद अपने अंदर हम गौर फिक्र करेंगे तो हमको खुद एहसास होगा कि हम क्या करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, ना इबादत, ना रियाजत, ना बंदगी, लेकिन फिर भी हम ना इत्तफाकी। याद रखो कि सरकार की हदीस है कि एक हो जाओगे तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल अपने आप होने लगेगा। तो एक माफी जो है माफ कर देना। मिसाल किसी से मिस्टेक हो जाए उसको माफ कर देना। अब आप कहते हैं इनके हम की माफ कर सका, तो अब बात जो है मैं बता रहा हूँ आज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा की, इनके हजरत अमीर हमजा, हजरत अमीर हमजा जिसे शहीद उश-शोहदा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक शहीद उश-शोहदा हजरत इमाम हुसैन है, और एक हजरत अमीर हमजा। हजरत अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं। कौन है? सगे चचा हैं। बड़ा मर्तबा है इनका, बड़ा मकाम है। और जंगे बदर के अंदर जंग हुई, जब जंग हुई तो जंगे बदर के अंदर जो है उस वक्त हिंदा के बाप उतबा को अमीर हमजा ने मार दिया। क्या किया? हिंदा के बाप को अमीर हमजा ने मार दिया। अब हिंदा ने ये कसम खाई। क्या कसम खाई? अब सुनना, कसम ये खाई कि मैं जो है अमीर हमजा को शहीद होता हुआ देखूंगी और उनका कलेजा में चबाऊंगी। क्या कसम खाई हिंदा ने? उनका कलेजा में चबाऊंगी। अब आप तो बताएं कि ये तारीख इस्लाम में कितनी बड़ी बात है। और सुभान अल्लाह, अगर कोई मोमिन इस बात पर अमल कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भर उसके ऊपर रहमत का नुज़ूल होगा। अब सोचिए कि हिंदा, उसने ये कसम खाई कि मेरे बाप के कातिल को मैं शहीद होता हुआ देखूंगी और देखने के बाद उनका कलेजा में चबाऊंगा। अब उसके लिए उसने एक हबशी गुलाम को तैयार किया जिसका नाम वहशी था। क्या था? वहशी गुलाम था। और नेजा चलाने में, भाला चलाने में बहुत माहिर था। उसे तैयार किया। अब इस्लाम की दूसरी जंग हुई जिसे जंग ओहद कहते हैं। जंग ओहद जब हुई तो अमीर हमजा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जंग के दौरान लड़ रहे थे और वहशी ने आपका जहर में भाला बुझाया, आपका निशाना बांधा और तीर यहाँ सीने पर ही लगा, भाला सीने पे लगा, आप शहीद हो गए। और कसम खुदा की ऐसी शहादत हुई आपकी कि आपको मुसला किया गया, आपके हाथों को भी काटा गया, आपके कान को भी काटा गया, आपके नाक को भी काटा गया।
और कलेजा निकाला गया आपका, वैसी ने निकाला और हिंदा को दिया, उसने चबाया। और यहाँ तक कि जब जंग खत्म हो गई, हमारे नबी जनाब अहमद मुत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह जब देखने के लिए आए तो आप खुद नहीं देख सकते, ऐसी हालत की थी। अब सोचिए कि इसको हमारे सरकार का भी माफ कर सकते हैं, कोई भी माफ कर सकता, कोई भी दुनिया का, कि जिसने इतना बड़ा गुनाह किया हो कोई माफ कर सकता है? और सगे चचा और इनकी इज्जत ये करते थे। तो हजरत वैशी है ना, अब हजरत में क्यों लगा रहा हूं मालूम है कि सुभान अल्लाह कि ये सहाबी रसूल हो गए हैं। अब कैसे हुए ये सुनो, कि वैशी ने शहीद तो कर दिया उन्हें, अब सारे सहाबा ने एकजुट हो गए कि वैशी को खत्म ही कर देंगे, क्या करेंगे, मार ही डालेंगे। अब वो दर बदर भटकता था, क्या है, कहीं यहाँ छुपने चला जावे, कहीं वहां छुपने जावे। अब उसके दिल में ये हुआ, क्या हुआ मालूम, कि पहले जमाने के अंदर अगर कोई ताजीम वाला, इज्जत वाला किसी का मर्डर कर देता था तो उसको खुशनसीब हो समझता था कि मैं इसके हाथ से दुनिया से चला गया। तो सोचने लगा कि साहबा तो मुझे मार देंगे, क्या करेंगे साहबा तो मुझे मार, क्या करूं, कहा सरकार की बारगाह में खुद चला जाऊं। अब सरकार की बारगाह में गया, नेजा लेकर गया और क्या कहा मालूम है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे मार दीजिए। कहा क्यों? कहा कि साहबा तो मुझे मार ही डालेंगे, लेकिन आप मार डालेंगे तो मुझे यकीन है जो है कि आप मुझे मार डालेंगे तो मेरी इज्जत होगी, मेरी नाम होगा कि हुजूर के हाथ से मुझे कत्ल क्या गया। तो वैसे से पूछा, तू मेरी बारगाह में आया है, तू मुझसे क्या उम्मीद रखता है? बोले कि आपके चचा को इस बेदर्दी से मैंने कत्ल किया, तो मैं उम्मीद क्या रख सकता हूँ? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह कहा, ऐसा कर कि तुझे मैं मारूंगा नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह तेरे गुनाह को मैं माफ करता हूँ और तू मेरा कलमा पढ़ ले, मैं तुझे अपनी गुलामी में लेता हूँ। अभी दो कि सोचिए, ये सरकार की शान है। सोचिए, सगे चचा का मर्डर किया है ना, और मर्डर किया है, हुजूर की बारगाह में आया और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। तो कसम खुदा की, ओ हजरत वैशी जब आते थे तो सरकार ने ये कहा था, उनसे ये कहा था कि मेरे पीछे खड़े रहना, कभी मेरे आगे बताना, क्योंकि तू आता है तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है मेरे जो है चचा का, कि तूने उसे शहीद किया था। तो सोचिए कि दीन इस्लाम कितना प्यारा मजहब होगा, है ना। आज जो है कोई किसी का कोई खा नहीं लेता, खा है ना, कोई किसी का खा लिया है, पैसा दबा लिया है, नहीं। अब तो क्यों मुंह चढ़ा के भाई फिरता है, तो क्यों नहीं समझता है? अरे किसी को माफ कर देना, इसी में कामयाबी है, और खुद माफी मांग लेना, है ना, वो कामयाबी। और हजरत हिंदा जिसने जो है सरकार का कलेजा चबाया था, वो खुद रसूल अल्लाह की बारगाह में आई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई तो हुजूर से कहने लगी कि या रसूल अल्लाह मेरी गलती माफ हो सकती है? कहा बस वेलकम, तेरी गुनाह को भी मैं माफ करता हूँ, तेरी गलती को भी माफ करता हूँ, है ना। तो ये नसीहत को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखो, है ना, कि हमेशा, क्योंकि हम तो एक गरीब हैं, मिस्कीन हैं, हमारे पास क्या है ना, बस एक है कि मोहब्बत से रहोगे तो हमेशा अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रहमतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। क्योंकि जो है कोई किसी से बड़ा नहीं हो जाता कि मैं बड़ा हूँ, मैंने कहा कि काम से बड़ा होता है। और अल्लाह की बारगाह में कौन बड़ा होता है मालूम है? कि जो खुलूस दिल से अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा के लिए बुलंद फरमाता है ना, बुलंद फरमाता है। और खुद आप तसव्वुर करना कि आज से पहले जब मस्जिद नहीं बनी थी, उससे पहले गांव की हालत क्या थी, और जब मस्जिद बन गई उसके बाद क्या हालत है ना। मस्जिद बन गई उसके बाद क्या रौनकें हैं। और सुभान अल्लाह हम खुशनसीब हैं कि हमारा छोटा सा गांव है, लेकिन सुभान अल्लाह रईस बाबा ने हमारी दावत को कबूल फरमाया और जो है वो आ रहे हैं। और किस लिए आ रहे हैं मालूम है? चाहता तो मैं जूनागढ़ में भी प्रोग्राम रख सकता था, चाहता तो इनके मुरीद विसाखर में भी है, लेकिन यहाँ क्यों रखा मालूम है? ताकि गांव का भला हो, क्योंकि औलादे गौसे आजम है। और हमने ये देखा है कि जिसके लिए वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसके घर में रहमत का नुज़ूल फरमाता है। तो मेरी ये तमन्ना है, क्योंकि मैं यहाँ का इमाम हूँ, तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि गांव का भला हो, गांव की अच्छाई हो, गांव तरक्की में आए। तो बस यही मेरी तमन्ना है कि वो दुआ कर दे तो हर एक के घर में रहमतों का नुज़ूल आ जाए।
हो उसकी भी बुराई करता है। तू कहाँ राजा है, तू कहीं माँ राजा है ना। तो बुराई करने से आदमी नीचा नहीं होता है ना। किसी का कोई है जो है बोलने तो नीचा नहीं होता है, बल्कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बुराई करता है उसे अच्छा लगना चाहिए। भले मेरी बुराई करेगा, क्यों कहा उसका सवाब मुझे तो मिलता है ना। जो है अभी हो तो मोई बुराई करे लग रहे आओ उनके धक्का मारी दिया ये करी दिया, लेकिन ऐसा नहीं करने का। अपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें दिया है, हम खा रहे हैं, अल्लाह ने रोज़ी दी है, अल्लाह ताला ने सब अच्छी चीज़ें दी है। तो हमारा तो यही कहना है कि हिल मिल के रहो, एकता के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, और अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना सीख लो, है ना। माफ हो गया, ख़त्म हो गई बात। और फिर अफवाहें गलत फैलाओ नहीं, किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि जो किसी का बुरा चाहता है अल्लाह उसके घर में ही बुरा कर देता है ना। जो किसी को बुरा कहता है वही बुरा होता है, क्योंकि हर इंसान जो है अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक है, और अल्लाह तबारक व ताला ने उसे पैदा फरमाया है, और अल्लाह रोज़ी देने वाला है। तो बेशक मेरी ये नसीहत है कि हमेशा अगर खुश रहना है तो अपने सीने को आईना बना दो, और हर मुसलमान को अपना भाई समझने दो, है ना। हर मुसलमान को अपना भाई समझ, मेरी ये नसीहत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस नसीहत पर जो भी अमल करेगा उसके लिए मैं खास दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसे हमेशा आबाद रखे, अल्लाह ताला हमेशा गौसे आजम का सदका उसे अता फरमाए ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या जलसा करें बराबर, ये कोई नहीं कर रहा है, एक आदमी नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा बच्चा भी वीरपुर का, पूरी औरतें भी, बूढ़े भी, सब शामिल है, सब शामिल है। ये जो बड़ा जलसा होता है कोई एक शामिल नहीं है, कोई ये कहे कि मेरा जलसा नहीं, सबका है ना। बच्चे का भी, इतना बच्चा है उसका भी है, औरतों का भी है, और सुभान अल्लाह बूढ़ों का भी है, और खिदमत गुजार कमेटी के अंदर बूढ़े भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, पूरी सीडा मुस्लिम जमात वीरपुर शामिल है। और ये जो प्रोग्राम होगा, जो 11वीं होगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के नाम पर है। और मेरी ये इल्तिजा रहेगी कि रईस बाबा आ रहे हैं तो वीरपुर में बच्चे से लेकर औरतों तक, बूढ़ों तक, सबके लिए दुआ हो जाए ना, सबके लिए और हर एक के लिए हो जाए, है ना। ताकि जो है मेरी तो यही तमन्ना है कि जहाँ आपने देते हैं वहाँ के सब लोग भी खुश रहे, वहाँ की औरतें भी खुश रहे, वहाँ के बच्चे भी खुश रहे, है ना। और यही हमारा काम है ना, किसी का बुरा चाहना हमारा काम नहीं है ना। और ये काम अल्लाह कराए हुए नहीं कि हम किसी का बुरा चाहें, बल्कि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने भला चाहा है, और हमेशा यही करते रहेंगे कि हम हर एक का भला चाहते हैं, ताकि हर एक का भला हो जाए। क्यों कि सबकी भलाई में अपनी भलाई है ना, सबकी भलाई में क्या है, अपनी भलाई। और ये याद रखना, जो खुद के लिए जीता है वो जीना नहीं है, जो दूसरों के लिए जीता है अल्लाह दुनिया में भी उसका नाम कर देता है, कब्र में भी उसका नाम कर देता है ना। हमेशा ये याद रखना है ना। तो यही दुआ है, और हमेशा उसकी दुआ मकबूल होती है जो दूसरों के लिए पहले दुआ करता है, बाद में अपना रिपोर्ट अल्लाह को बताता है। तो रब तो सब देखता है। तो मेरी ये नसीहत है कि आप एकता के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, और सुभान अल्लाह बाबा से जो भी कहना हो आप कह भी सकते हैं, आप दुआ भी करवा सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आज के जुलूस में ये नसीहत है कि हमेशा अपने दिल को साफ रखना, किसी से मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना, और हमेशा एकता के साथ रहना, है ना। और किसी का बुरा मत चाहना, क्योंकि बुरा चाहने में कभी आपका भला नहीं होगा, बल्कि आप किसी का भला चाहेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपका भी भला करेगा, आपकी औलाद का भी भला करेगा। अल्लाह तबारक व ताला मेरी नसीहत पर अमल करने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला जितने भी मरहूमीन है उनकी कब्र पर भी रहमत अनवार की बारिश अता फरमाए, और ख़ास कर मरहूम शोएब जो खिदमत गुजार कमेटी का मेन था, अल्लाह उसकी कब्र पर भी रहमत अनवार की बारिश अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला जितने भी यहाँ माएँ बहनें हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बूढ़े हैं, जितने भी लोग हैं, मौला तबारक व ताला गौसे आजम के सदके सबको तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला सबके घर को ऐसा बना दे कि किसी का जिंदगी में मोहताज ना रहे। और अल्लाह तबारक व ताला हर एक इंसान को नेक तौफीक और नेक हिदायत अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला जितने भी शयातीन वीरपुर की सरजमी पर हो, मौला तबारक व ताला इन्हें दूर अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला हर बला, हर जो है बीमारी से मौला ताला पूरे गांव को महफूज अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला जो ये जश्न गौसे आजम दस्तगीर होने वाला है, आज जुलूस के अंदर हम
खास ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इसमें कामयाबी नसीब अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इस जलसे के बाद वीरपुर वाले को हमेशा तरक्की अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला कुछ रहे या ना रहे, लेकिन दुआ है नज़ात के वक्त हम सबका ईमान सलामत रहे। आमीन आमीन बिजाहिता यासीन बरहमती का या रहमान रहीम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।